Okay, so we will covering the part of Windows 7 and Windows 10 today, and we will going further to the history of computers. So as you can see, this is as you can see, this is the most commonly used Windows, that is Windows 7. Windows 7 almost everybody is using, and everybody is knowing that how to use or how Windows 7 appearance looks like. Okay, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो यू आर गेटिंग अ स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन होता है. अगर आपने वॉलपेपर नहीं उसमें डाला रहेगा तो you will be getting one screen, blue colored screen having this types of icons. Okay, यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स ओपन होते हैं उसको प्रोग्राम्स बटन बोलते हैं. फिर द longest bar present at the end of the स्क्रीन इज टास्क बार. सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बार जो प्रेजेंट होता है वो टास्क बार होता है. यहाँ पे होता है नोटिफिकेशन एरिया. Now, what is notification area? Notification area means whatever extra devices you are attaching to the computer. Okay, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, फिर ये जब आप ऑडियो जैक इंस्टॉल करते हो, जैसे कि हेडफोन्स इंसर्ट करते हो, पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो, सीडीज इंसर्ट करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा दैट स्टोरेज डिवाइस हैज बीन इंसर्टेड लाइक दैट. ओके, और इस अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है कंप्यूटर में, वायरस डिटेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि वायरस हैज बीन डिटेक्टेड. और स्कैन जब करते हो तो स्कैनिंग का प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिखेगा, तो उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया. मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, राइट? जब भी मोबाइल आपका लॉक रहता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखता है ना, लाइक दैट ओनली कंप्यूटर पे जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं आपको ये एरिया में दिखते हैं. ओके फाइन. सो नाउ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, ये यहाँ पे ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे शो डेस्कटॉप बटन. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शो डेस्कटॉप बटन. ओके, फिर एक्सप्लोरर विंडो होता है जहाँ पे जो भी डाउनलोडेड फाइल्स होते हैं, ओके, जो भी डाउनलोडेड फाइल्स होते हैं वो एक्सप्लोरर विंडो में आता है, और यू कैन कॉल इट विंडोज एक्सप्लोरर ऑल्सो. गैजेट्स मीन्स वेदर फोरकास्टिंग हो गया, क्लॉक हो गया, दिस ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन विंडोज 7. ओके, तो व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन विंडोज 7? icons with shortcuts, start button, program buttons, taskbar, notification area, show desktop button, gadgets, and Windows Explorer. These things are present in Windows 7. ये सब चीजें commonly आपको हमेशा Windows 7 में दिखेगी. Sorry. So now, Windows 7 is an operating system. I am just reading out. आप लोग ध्यान दो. Windows 7 is an operating system released by Microsoft on October 22. It follows the previous version of Windows called Windows Vista. Windows Vista के बाद का जो वर्जन है उसको हम लोग Windows 7 बोलते हैं, ठीक है. Windows Vista के बाद जो अपग्रेड होके वर्जन आया वो कौन सा आया? Windows 7, ठीक है. फिर like a previous version, Windows 7 has a graphical user interface that allows you to interact with items on the screen using keyboard and mouse. Windows 7 is also graphical user interface. That means you can see movies, you can see pictures, you can hear songs, you can play games, you can do all these things in Windows 7 operating system. Okay, and also you are able to use keyboard and mouse with the help of Windows 7. Okay, however, Windows 7 is also Windows 7 also includes feature called Windows Touch. Many of you have seen that the Windows 7 is also having a touch screen. Touch screen भी होता है उसमें. Okay. Windows 7 is also supporting the touch screen, input and multi-touch functionality. Okay. So these are the features of the Windows 7.
that it is supporting touch screen and multi touch functionality, and it is graphical user interface. That means we are able to see movies, hear music, play games, and do a multiple task at a time. Okay, so we can call Windows 7 as a Windows, GUI, that is graphical user interface. Okay, next comes Windows 7, which is the latest version of the window. Okay, अब आप देख सकते हो Windows 7 का स्क्रीन देखो सब लोग. Windows 7 का स्क्रीन देखो कैसा है, पूरा ऐसे भरा हुआ है. एंड Windows 10 का स्क्रीन देखो, थोड़ा ऐसे स्पेशियस लगेगा आपको. सो व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference? That we are not able to see the screen icons in this. Okay, यहाँ पे हमें icons नहीं दिखेंगे. Okay, we are not able to see the icons on the screen. Icons देखने के लिए we have to go in this PC. Okay, start button, start menu में जाके we are able to see all the programs present in a computer. Okay, now Windows 7 में क्या होता था? Start menu यहाँ पे होता था, right? Sorry. Okay. स्टार्ट बटन यहाँ पे होता था विंडोज 7 में. विंडोज 7 में स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको सर्च बॉक्स दिखता था, राइट? बट यहाँ पे कैसे है? स्टार्ट बटन के बाजू में ही आपको सर्च बॉक्स दिखेगा. सो यू कैन सर्च योर फाइल्स, फोल्डर्स, एनीथिंग जो भी आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, एंड इट विल बी सर्चिंग इन द होल कंप्यूटर. ओके, फिर ये है क्विक लॉन्च प्रोग्राम्स. मीन्स तुरंत आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे नोटपैड का सिंबल है, तो यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक करने के बाद आपको तुरंत नोटपैड का विंडो आएगा. सो दिस इज क्विक लॉन्च प्रोग्राम. एंड एज इट इज, जैसे विंडोज 7 में था, नोटिफिकेशन एरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन विंडोज 10. ओके, I hope I am clear with Windows 10 also. It is just how it looks like. Okay, then Windows 10 desktop. Windows 10 is a major version of the Microsoft Windows operating system that was released on July 29, 2015. कब रिलीज हुआ था? 2015 में, जुलाई 29 को. On the primary aims of Windows 10 is to unify the Windows experience across multiple devices such as desktop computer, tablets and smartphones. Windows 7 का थोड़ा लिमिटेशन था, इसलिए उसको अपग्रेड करके Windows 10 आया. Windows 10 is now used in desktop computer also. Sorry, it is used in desktop computer also, tablets also and smartphones also. Smartphones में भी अब हम लोग Windows 10 यूज करते हैं. Nokia phones, if you know about that, Nokia phones is always having an operating system of Windows 10. Okay, you can if you have, you can see that Nokia phone also, उसमें हम लोगों को Windows 10 का ही operating system मिलेगा. Okay, while Windows 10 includes many features, it also brings back the start menu which we dropped in Windows 8. The new and improved start menu provides quick access to the setting, folder and program. Start menu Windows 8 में नहीं था, ठीक है. फिर वापस उसको अपग्रेड करने के बाद Windows 10 में start menu आया, and because of that we were able to quickly find the files and folders or any program. Okay, the bottom of the Windows 10 start menu includes a search bar that allows you to search both your local PC and the web. Now see, जो search bar मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, this one, उसमें आप सिर्फ कंप्यूटर की फाइल्स ही नहीं, आप वेब इंटरनेट का भी सर्च कर सकते हो. इफ यू टाइप एनी टॉपिक, ओके, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिखा चार्ल्स बैबेज, तो यू विल बी getting the whole information related to Charles Babbage also. Okay, so what does it means? That you are able to search the files and folders present in your computer, as well as you can search through internet also using this search box. Okay, another major change in Windows 10 is the introduction of Edge web browser, which is designed to replace Internet Explorer. Windows 7 में हम लोग यूज करते थे Internet Explorer, right?
विंडोज 7 में हम लोग यूज करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट विंडोज 10 में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एज सॉफ्टवेयर. By default we are having Edge software. I hope now it is clear to you all. Okay, so Windows 7 and Windows 10 is clear to everybody. Moving to the next, this is window. How your Windows Explorer look like, उसमें क्या क्या available है, that I will show you. This you all know, but it's just an revision look for you. Windows of File Explorer, यहाँ पे एड्रेस बार होता है. ये Windows 10 का एक्सप्लोरर है. Windows 10, जिसके पास भी विंडोज 10 आपके कंप्यूटर में होगा, दे कैन सी आपका विंडो इस तरह से दिखेगा. ठीक है, एड्रेस बार होगा. ठीक है, यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे. फिर ये सर्च बॉक्स है. ये जो टाइप साइज है इसको कॉलम्स नेम बोलेंगे. दिस इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. और ये है नेविगेशन पेन विच यू कैन डू अप एंड डाउन. ओके, एंड दिस यू ऑल नो, होम, स्टार्ट, ये इसको क्या बोलते हैं? टैब्स. ओके, इसको क्या बोलते हैं? टैब्स बोलते हैं. ओके, सो व्हाट थिंग्स आर प्रेजेंट इन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर? फाइल्स एंड फोल्डर्स, नेविगेशन पेन, बैक फॉरवर्ड बटन्स, कॉलम नेम्स, सर्च बॉक्स, एड्रेस बार एंड टैब्स. ओके, many things are there. Okay, if you want you can write down also. I will repeat it again. Files and folders, navigation pane, address bar, back forward buttons, column names, search box and tabs. These things are present in the File Explorer box. Okay, so this was the application of File Explorer. जब आप My Computer open करते हो तो आपको ये वाला box दिखेगा. Now what if you open the application? Word application आपने open किया है, right? You have opened the Word application. Word application open करने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा? These things you already know. ठीक है, Office button है, Quick Access Toolbar है. Quick Access Toolbar means it is having undo, redo and save button. Okay, फिर ये पेज लेआउट हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, इसको बोलेंगे टैब्स. डॉक्यूमेंट 1 है, इसको बोलेंगे टास्क टाइटल बार. ओके, फिर ये हो गया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. फिर ये है हमारा रिबन. ओके, दिस इज आवर रिबन. फिर ये है हमारा इंसर्शन पॉइंट, जिसको हम लोग कर्सर भी बोलते हैं. ओके, इसको क्या बोलेंगे? इंसर्शन पॉइंट फ्रॉम विच यू आर एबल टू राइट डाउन द थिंग्स. ओके, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट पेन. वाइट बॉक्स जो होता है उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट पेन. ठीक है, ये जो है दिस थिंग्स, ये वाला, दिस वन, पैराग्राफ एंड ऑल, फॉन्ट्स, इसको ग्रुप्स बोलेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है. ठीक है, उसको बोलेंगे हेल्प आइकन. फिर ये स्क्रोल बार, स्क्रोल बटन, स्क्रोल एरो. ठीक है, ये पूरा स्क्रोल बार हो गया. ये छोटा सा एरो है उसको स्क्रोल एरो बोलेंगे. एंड ये जो बटन दिख रहा है उसको स्क्रोल बटन बोलेंगे. ठीक है, ये यहाँ से आप जूम कर सकते हो, यहाँ से आप व्यू कर. ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस बार दिखेगा. यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस बार दिखेगा दैट हाउ मेनी पेजेस यू हैव रिटन एंड हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव रिटन. ओके, ये सब आपको पता है बिकॉज यू हैव यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर राइटिंग पर्पस. ओके, इट जस्ट एन रिविजन कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्ड का विंडो इस तरह से दिखता है और ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट, files and folders. Files and folders, this also you all know. Files इस तरह से दिखेगी. ओके, एंड फोल्डर्स का आइकन इस तरह से येलो कलर का फोल्डर का आइकन होगा. ओके, नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स में क्या डिफरेंस है?
files is having only one document, means अभी ये जो फाइल है इसके अंदर आप एक और फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो. ओके ये जो बर्थडे इनविटेशन का फाइल है, बर्थडे इनवाइटीज का जो फाइल है उसके अंदर एक और फाइल आप इंसर्ट नहीं कर सकते. बट ये जो फोल्डर है उसके अंदर आप n नंबर ऑफ फाइल्स इंसर्ट कर सकते हो, जितने भी 10, 20, 30, 40 whatever number you want, you can enter the file in that. Okay, so this is the difference between folders and files. फाइल एक ही होता है और फोल्डर्स के अंदर आप बहुत सारे फाइल्स एंटर कर सकते हो. ओके सो विल सी फाइल्स ऑलवेज लुक लाइक दिस. ठीक है, उसका हमेशा सिंबल ऐसे रहेगा. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वन यूनिट identified by a file name. It can be a document, picture, audio or video stream, data library, application or other collection of data. Different type of files store different types of information. Now see, फाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं है फाइल मतलब वर्ड फाइल ही होगा या फिर एक्सेल फाइल ही होगा. यू मे हैव पेंट फाइल ऑल्सो, ड्राइंग का फाइल हो सकता है, फिर एक वीडियो का फाइल हो सकता है, फिर इमेजेस का फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है. ठीक है, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन रहता है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे W लिखा है, ये वाले फाइल में W लिखा है, मीन्स दिस फाइल इज ऑफ वर्ड एप्लीकेशन. यहाँ पे X लिखा है, मीन्स दिस फाइल इज ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन. ठीक है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि ये किस टाइप की फाइल है. सो इट इज गिवन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक फाइल का इंफॉर्मेशन अलग अलग रहता है. ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम एंड हैज अ 3-letter फाइल नेम एक्सटेंशन. Extension is very necessary for file. Okay, extension is very necessary for the file. For example, dot doc, dot xls, these are the extension of the files. Okay, अभी ये क्या है मैं आपको बताती हूँ. The file name and file extension are separated by a period. For example, document created using WordPad might have the file name letter to john.doc. अगर वर्ड पैड में आपने डॉक्यूमेंट बनाया है तो आपके फाइल को एक्सटेंशन होगा .doc. ओके, अगर आपकी फाइल वीडियो है, ठीक है, अगर आपका फाइल वीडियो है तो आपका वीडियो का एक्सटेंशन होगा .mp4. ओके, अगर सॉन्ग है तो आपका एक्सटेंशन होगा .mp3. ठीक है, समझ में आया. तो similarly some common file extensions are given here. doc, word और word document. वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी होता है जिसमें आप लेटर वगैरह लिखते हो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, doc होगा. जो भी फाइल का एक्सटेंशन txt है वो नोटपैड का फाइल है. जो भी फाइल का एक्सटेंशन xls है वो एक्सेल का फाइल है. और ppt जिसका एक्सटेंशन है वो पावर पॉइंट का फाइल है. ओके, दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिख सकते हो आप लोग अभी. That some common file names in extension are doc, which is related to word document, txt, which is related to notepad file, xls, which is related to excel application, and ppt, which is used for PowerPoint presentation. Okay, these are related to files. Okay, moving to the next, folder. A digital folder has the same purpose as a physical folder, to store documents. Computer folders can also store other types of files such as application, archives, script, and libraries. Folders can even store other folders which may contain additional files and folders. मतलब ओके, फोल्डर का मतलब क्या होता है, यू आर एबल टू, फोल्डर का मतलब क्या होता है, विच इज कंटेनिंग मेनी टाइप्स ऑफ फाइल. ओके, नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड अ फोल्डर, तो ऐसे जरूरी है क्या वो फोल्डर में सिर्फ वर्ड का ही फाइल होगा या फिर वो फोल्डर में सिर्फ एक्सेल का ही फाइल होगा. नो, वी कैन स्टोर ऑडियो फाइल ऑल्सो, वीडियो फाइल ऑल्सो. ओके,
we can store all types of files in a folder. ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक फोल्डर के अंदर हम दूसरा फोल्डर भी बना सकते हैं. इट इज नोन एज सब फोल्डर. बट ऐसे फाइल में नहीं होता है. दिस थिंग्स इज हैपनिंग ओनली इन फोल्डर ओनली. Okay, a computer, so it is given that a computer folder can also store other types of files such as application, archive script and libraries. जो भी चीजें आप लोग डाउनलोड करते हो, ओके, फॉर एग्जांपल आपने आपका गेम डाउनलोड किया, ओके, तो वो गेम भी जाके एक फोल्डर में ही सेव होगा ना, ठीक है. सो उसका मीनिंग क्या है? फोल्डर ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स एक्सेप्ट करता है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ वन टाइप ऑफ फाइल इट इज एक्सेप्टिंग. any type of file can be saved in folder. Okay, so moving to the next, history of computers. Now the main topic, history of computers. From the 1950s the computer age took off in full force. The years since then have been divided into parts or generation based on the technology used. Okay, सबसे पहला जो कंप्यूटर था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है, वो बहुत बड़ा था, राइट. 1950 में जो इन्वेंट हुआ था, इट वाज एज बिग एज अवर रूम. फिर जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ते रहे, ठीक है, ईयर्स आगे बढ़ते रहे, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होने लगी और कंप्यूटर्स छोटे 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 होने लगे. सो दैट इज नोन एज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. Okay, and history of computers can be further divided to generation of computer. Now for in this we are going to learn about generation of computers. There are total 5 generation of computers. First, second, third, fourth and fifth. How many? 5. 5 generation of computers hai. First generation of computer, second generation of computer, third generation of computer, fourth generation of computer and fifth generation of computer. So this many types of computers are available. So we will go for a first generation computer. Now kids, please pay attention very carefully that what are the features and what are the advantages and disadvantages of first generation computer. First generation computer के year कौन से थे? 1946 to 59. Okay, first generation computer were invented in 1946 and it were used up to 59, that is 1959. Okay, and first generation computer were using vacuum tubes. Okay, what it were using? Vacuum tubes. Okay, I am just reading, just pay attention. This is how our first generation looks like. Okay, the period of first generation was 1946 to 59. The computers of first generation used vacuum tubes as the basic components of memory and circuitry for the CPU. These tubes were like electric bulbs, produce a lot of heat and were prone to frequent fusing and of the installation. Therefore, they were very expensive and were afforded by very large organization. The computer's generation used machine code as a programming language. Okay, so what were the things used in first generation computer? Vacuum tubes use होता था, ठीक है. अब वैक्यूम ट्यूब्स एक छोटे छोटे बल्ब्स की तरह होते थे. आपके लाइटिंग्स होते ना, दिवाली के लाइटिंग्स, समवॉट लाइक दैट. ओके, वो लाइटिंग्स की तरह होते थे, स्मॉल बल्ब की तरह. बट बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ हीट वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था और वो बार बार फ्यूज हो जाता था. कभी कभी ऐसे होता ना, दिवाली में आपके लाइटिंग्स बंद हो जाते हैं, ठीक है. सो लाइक दैट वो बल्ब्स फ्यूज हो जाते थे और उसको बार बार इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती थी. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे विच वर लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड वर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट. बिकॉज ऑफ दैट हीट द बल्ब्स बार बार फ्यूज हो जाते थे और उसको हम लोगों को बार बार मेंटेन करना पड़ता था और उसके वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली हो गए, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए and were affordable by only big institutes. As a common man were not able to afford the first generation computer. Okay, fine. So this is one of the disadvantages of first generation computer.
द कंप्यूटर्स जनरेशन यूज मशीन कोड. ये फर्स्ट जनरेशन क्या यूज करते थे? मशीन कोड लैंग्वेज यूज करते थे. ओके, विच कोड? मशीन कोड language as a programming language. Okay, so I will repeat it again. First generation computer were using vacuum tubes which were like small electric bulbs. Okay, and because of that small electric bulbs a lot of heat was produced. Okay, because of that lot of heat produced, frequent fusing होता था electric bulbs में. ठीक है, फ्यूज होने जैसे जैसे फ्यूज होता था उसको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती थी और बार बार उसको इंस्टॉल करने की वजह से वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया. ठीक है, एक्सपेंसिव हो गया मीन्स वो ज्यादा कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट अ कॉमन मैन वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट. ठीक है, only a large organization were able to afford that computers. Okay, and which language were computer using? Machine code language as a programming language. ठीक है, I hope we are clear with this. Now see, we will see the advantages of first generation computer. Sorry, it made use of vacuum tubes. Okay, first one, it made, we are seeing advantages. Advantages देख रहे हैं हम लोग. It made use of vacuum tubes which are the only electronic component available those days. अब आप पूछो कि टीचर अगर वैक्यूम ट्यूब्स बार बार फ्यूज होता था तो साइंटिस्ट दूसरे ऑप्शन के लिए क्यों नहीं गए? बट इन दैट days, in those days only that component were available. वो ट्यूब्स ही अवेलेबल थे, उसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं था. so they have to use that vacuum tubes. okay, these computers could calculate in milliseconds. ठीक है, कैलकुलेशंस कितने सेकंड में होता था? मिलीसेकंड में. okay, so advantages क्या हो गए? it made a use of vacuum tubes which were only electric component available those days and they were calculating speed कितने में होता था उनका? milliseconds में. now sorry, you can see many disadvantages of first generation computer. First is these were very big in size. okay, weight was about 30 tons. big तो था ही but उसका weight भी बहुत ज्यादा था. the computers were based on vacuum tubes. as I said, vacuum tubes से वो computer बना था. ठीक है, it was very costly. vacuum tube से बना था and that was very costly. it could store only some small amount of information due to the presence of magnetic drums. इतना बड़ा कंप्यूटर था बट उसमें स्टोरेज इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ही था. so this is also one disadvantages that we are working on with this much big machine and it is able to store only small information. this is also one disadvantage. as the invention of as the invention of first generation computer involves vacuum tubes, so another disadvantages of the computer was vacuum require cooling system, large cooling system. इससे पहले हमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज करने की वजह से लॉट ऑफ हीट वाज प्रोड्यूस्ड. अब वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कूल करना पड़ेगा, तो कूलिंग के लिए बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम हम लोगों को जरूरत पड़ता था. सो दिस इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेजेस. वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्क वाज वेरी लेस, मींस तुरंत तुरंत उसमें काम नहीं होता था. काम क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो बार बार डिफ्यूज हो जाता था, इसलिए. Limited programming capabilities and punch card were used in inputs. Programming capabilities बहुत कम थे. ठीक है, सिर्फ मशीन कोड यूज कर सकते थे हम लोग वो कंप्यूटर्स में. और इनपुट्स के लिए we were using punch cards, means we have to manually give the punch cards to the computer. ठीक है, large amount of energy was consumed. See, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हीट कम करने के लिए हम लोग बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं. तो ये सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा. यस, तो एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता था. ओके, सो नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. रिलायबल बिल्कुल भी नहीं था और बार बार उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी. नाउ यू विल आस्क टीचर व्हाट इज मेंटेनेंस. मेंटेनेंस क्या होता है? जैसे कि आप आपके साइकिल है आपकी, ठीक है, उसमें हवा भरते हो, उसकी चेन को ऑयलिंग करते हो, राइट.
फिर आपके पापा की बाइक, उसको आप लोग सर्विसिंग में डालते हो तो मेंटेन करते हो ना आप, तो वैसे ही हम लोगों को हर एक सिस्टम का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को मेंटेनेंस बार बार रिक्वायर रहता था, इसलिए दिस इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, आई होप आई एम क्लियर विथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। सेकेंड जनरेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।